हाय एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं आरबीआई असिस्टेंट का लाइव मॉक, जो कि ओली बोर्ड पे आ रखा है और ये 31 मार्च तक अवेलेबल है। तो शुरू करते हैं। चलो आइयो। द सनसेट द स्काई विथ ह्यूज ऑफ ऑरेंज एंड पिंक। द वाइब्रेंट सनसेट पेंटेड द स्काई विथ द विजिलेंट सनसेट प्लग्ड। यहाँ तो पेंट ही आना चाहिए ना। पेंट प्लंज क्राइड कैरिड द वाइब, यही है। द जॉयफुल ऑफ चिल्ड्रेन the joyful of children through the peaceful park, the joyful laurel illuminated echoed होगा ना। the joyful laughter of children echoed through the peaceful park. See the secret, hoping nobody would मॉडल वर्ब है तो उसके बाद V1 आना चाहिए। ओवरहर्ड तो नहीं होगा। हर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। She shouted the secret, hoping nobody would hear her confidential information. She cried, secret cried तो नहीं करेगी। rolled ये भी नहीं होगा। ठीक है। After much contemplation, बहुत ज़्यादा सोचने के बाद he a life altering with confidence. He made a life altering decision with confidence. ठीक है। The attention to detail and craftsmanship was the hallmark of the master carpenter's work. तो एफ तो सही लग रहा है। BD the scientist conducted a replication of the experiment to verify the accuracy. ठीक है। The skyscraper was so tall that it seemed like a gargantuan structure against the city skyline. ठीक ही है। A deep rift had developed between the two roofs of the nearby house. They were nowhere to found between two friends. ठीक है, ये हो सकता है। Deep rift developed between the two friends due to a misunderstanding. तो AF तो है, तो AF वाला ये रहा। और किसी में AF है नहीं। BD है। The hailstorm caused significant damage to the roof of the nearby house. ठीक है। इसको वैसे तो हम लोग पैराजम्बल लास्ट में करते हैं, पर इसको अभी किया जा सकता है, आसानी लग रहा है। द साइज ऑफ अ नेशंस इकोनॉमी इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड एज इट्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और GDP, and it is calculated by taking the quantities of all final goods and services produced and sold in markets, multiplying them by their current prices and adding up the total. तो मुझे A और B सीधा ही लग रहा है। देखते हैं अभी। A तो स्टार्टिंग हो सकता है, ज़्यादा चांसेस है इसी के। इट इज़ द वैल्यू ऑफ द आउटपुट ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस within the country in a year. It is the value of the output. And if it falls for 2 quarters in a row, that is known as a recession, which can mean pay freezes and lost jobs. When GDP is growing quickly, you often see more jobs, rising wages and better profits for businesses. तो it is a ठीक है, it is the value. तो मुझे ऐसा लगता है कि C पहले आएगा B के। अब देखो, द साइज ऑफ अ नेशंस इकोनॉमी इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड एज GDP. इट इज़ वैल्यू ऑफ द आउटपुट ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री इन ईयर, एंड इट इज़ कैलकुलेट। ठीक है, इसको पहले डिफाइन किया है, फिर इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताया B में। तो ACB का पेयर सही है। और फिर कैलकुलेशन कैसे होता है एक तरीके से वो बता रखा है D और E में। तो E में बताया है कि जब GDP बढ़ता है तो क्या होता है, और D में बता रखा है कि जब फॉल होता है GDP तो क्या होता है। तो ACBED B when GDP is growing quickly and
एंड से कनेक्टेड है तो पहले यही आना चाहिए, ई के बाद डी, तो सब कुछ सही है। चलो ए सी बी ई डी। Rest. After a long day of work, I decided to rest and unwind by reading a book. ठीक है। I need to pay my monthly rest for my apartment by the end of the week. Rent होता है ना यहाँ पे। I need to get some rest before the big exam tomorrow. तो 1 and 3 करेक्ट वाला बताना है ना, ठीक है। तो सेकंड नहीं होगा। बुक, आई पिक्ड अप अ फैसिनेटिंग बुक एट द लाइब्रेरी yesterday. ठीक है। आई नीड टू बुक अ फ्लाइट फॉर माई अपकमिंग बिजनेस ट्रिप। बुक अ फ्लाइट, ठीक है। आई फाउंड माई सेल्फ कम्प्लीटली बुकड एंड हेंस स्ट्रगलिंग टू मेक एंड्स मीट। तो ये गलत लग रहा है 1 and 2। आई पिक्ड अप, ठीक है। इन द एज ऑफ डिजिटल, ये क्या है भाई? excessive paperwork, unnecessary investment, ठीक है। all the latest electrical appliances have a 2-year guarantee। सी, तो आसान लग रहे हैं। we need to be very careful, बार देख लो यार, गलत वाला ही बताना है ना, ठीक है। we need to be very careful about hygiene to avoid catching diseases। अब डिजीज़ेस का स्पेलिंग यार गलत है शायद, DIES होता है ना, DIS, डिसीजेस, ठीक है। डी नहीं लग रहा है। द डिफ़िकल्ट क्लाइम वॉज रिवार्डेड REVARD, रिवार्ड का मतलब कुछ होता है क्या? द डिफ़िकल्ट क्लाइम वॉज रिवार्डेड विथ एन एक्सिलरेटिंग व्यू फ्रॉम द समिट। समिट का मतलब टॉप, एक्सेलरेटिंग का मतलब बहुत ही एनर्जेटिक। तो CDA तो सही लग रहा है। अब B मीनिंग वाइज ही गलत हो सकता है, और B का मीनिंग मुझे पता नहीं है, तो मैं मार्क कर देता हूँ कि ये गलत होगा। पर ये मेरा आंसर गलत हो सकता है, क्योंकि रिवार्ड का मतलब मुझे नहीं पता। अब इसको बाद में करेंगे। हाँ, पैसेज कर लेते हैं, इससे पहले इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह देख लेते हैं। ह्यूमनली का मतलब क्या है? एंटोनिम ऑफ ह्यूमनली, एंटोनिम बताना। कंपेशन, टू शो मर्सी, कामनेस, टू शो बिहेवियर, ये होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द पैस। ठीक है, अभी नहीं बेट। Just 4 and 20 hours before he was to have had his first comfortable bit of air. किस बारे में बात हो रही है भाई? bit of air, bit decoy, पता नहीं यार, इसको पैसेज पढ़ के ही पता चलेगा। मार्क कर लो। बस पैसेज ही है क्या? चलो पैसेज और ये वाले बच्चे हैं, तो पहले पैसेज करते हैं। और थोड़ा जल्दी। For the next 8 or 10 months, Oliver was the victim of a systematic course of treachery and deception. He was brought up by hand. The hungry and destitute situation of the infant orphan was duly reported by the workhouse authorities to the Paris authorities. The Paris authorities inquired with dignity of the workhouse authorities whether there was no female that domiciled in the house who was in a situation to impart to Oliver twist consolation and nourishment of which he stood in need. The workhouse authorities replied with humility that there was not. Upon this, the Paris authorities magnanimously and humanly resolved the Oliver should be farmed, or in other words, that he should be dispatched to a branch workhouse some 3 miles off, where 20 or 30
other juvenile offenders against the poor laws rolled about the floor all day without the inconvenience of too much food or too much clothing. Under the parental superintendence of an elderly female who received dark culprits and for the consideration of 7 pence halfpenny, 7 pence halfpenny per small head per week. ठीक है, 7 pence halfpenny's deal 7 pence halfpenny's worth per week is a good round diet for a child. A great deal may be got for 7 pence halfpenny, quite enough to overload its stomach and make it uncomfortable. The elderly female was a woman of wisdom and experience. She knew what was good for children and she had a very accurate perception of what was good for herself. Okay, so she appropriated the greater part of the weekly stipend to her own house and consigned the rising parochial generation to even a shorter allowance that was originally provided for them, thereby finding in the lower step a deeper still and proving herself a very great experimental philosopher. Everybody knows the story of another experimental philosopher who had a great theory about horse being able to live without eating and who demonstrated it so well that he got his own horse down to a straw a day and would most unquestionably have rendered him a very spirited, rampacious animal upon nothing at all if he had not died just 4 and 20 hours before he was to have had his first comfortable bit of air. ये पैरा कुछ समझा नहीं भाई ओवरऑल. चलो ठीक है, पहले क्वेश्चन देखते हैं. अकॉर्डिंग टू द पैसेज ओलिवर ट्विस्ट बिकम अ विक्टिम टू विच ऑफ द फॉलोइंग. ट्रेचरी और डिसेप्शन पहले ही लिखा हुआ था, ये रहा. अकॉर्डिंग टू द पैसेज टू हुम डिड द वर्कहाउस अथॉरिटी रिपोर्ट अबाउट इन्फेंट. पारिस अथॉरिटीज था ना, ठीक है. अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट वाज द डिसीजन मेड बाय द पारिस अथॉरिटीज रिगार्डिंग द ऑर्फन, कि उसको ब्रांच वर्कहाउस में भेज दिया जाए. अकॉर्डिंग टू द पैसेज हु वाज ओलिवर. एक ऑर्फन था और एक इन्फेंट भी था ना, द हंग्री इन्फेंट ऑर्फन. देखो इन्फेंट ऑर्फन 1 and 3. अकॉर्डिंग टू पैसेज हु कैन बी सेड अबाउट द फूड गिवन बाय द एक्सपेरिमेंटल फिलोसोफर टू हिज हॉर्स. एक स्ट्रॉ देता था एक दिन का यहाँ पे. चलो ठीक है. अब ये मुझे समझा नहीं, बिट ऑफ एयर क्या है भाई. BAIT. ट्वाइन, डिकॉय, टॉय, अ मैमल, कंफर्टेबल बिट ऑफ एयर. तो यार होगा क्या, हुक, कंफर्टेबल हुक ऑफ एयर तो कुछ होता नहीं है. ट्वाइन, इंटरट्वाइन का मतलब ऐसा होता है ना उलझ जाना, तो मतलब ट्वाइन का मतलब उलझना ही कुछ होगा. तो ट्वाइन का भी कोई सेंस नहीं बैठ रहा है. इस फर्स्ट कंफर्टेबल ट्वाइन ऑफ एयर. डिकॉय क्या होता है भाई. टॉय अ मैमल तो नहीं हो सकता. टॉय ऑफ एयर, अ मैमल ऑफ एयर. मैं इसको मार्क कर देता हूँ, पर यार इसका चलो ठीक है, देखते हैं. 2 क्वेश्चन तो मैंने ऐसे मार्क कर दिए भाई, गलत हो सकता है. अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट कैन बी सेड अबाउट द 7 pence halfpenny's वर्थ ऑफ फूड टू अ चाइल्ड. हाँ, तो उसका स्टमक ओवरलोड कर जाएगा, ये लिखा हुआ था, और उनको अनकंफर्टेबल कर देगा. तो 3rd and 4th यही है. इट कैन बी इनसफिशिएंट फॉर देम, इट कैन बी, उल्टा लिखा हुआ है. According to the passage, what are the qualities that can be said about the elderly woman at the branch? समझदार थी, एक्सपीरियंस थी, और उसको पता था कि बच्चों को कितना खाना देना है. नहीं, 1 and 2 होगा. इस पे आते हैं. नो एरर. ठीक है, बताना है किसमें एरर है. His ambition is to learn programming languages such as Python, Java and to mastering. पैरेललिज्म का दिक्कत है. टू लर्न था तो टू मास्टर आता है यहाँ पे. द सक्सेस ऑफ अ रेस्टोरेंट ऑफन डिपेंड के बाद हमेशा प्रपोजिशन ऑन लगता है.
इफ़ आई विल हैव इनफ इंग्रेडिएंट्स आई विल बेक अ केक फॉर द पार्टी। इफ़ आई हैव, यहाँ पे कंडीशनल वन लगेगा ना, अगर ये सिंपल प्रेजेंट में तो ये सिंपल फ्यूचर में होगा, कंडीशनल सेंटेंस है। तो इफ़ आई हैव इनफ इंग्रेडिएंट्स आई विल बेक अ केक फॉर द पार्टी। ठीक। डिस्पाइट द टेम्पटिंग array of desserts on the table, he did not take none. Despite the tempting array of desserts on the table, he take none होता ना, सुपरफ्लुअस हो गया। एक और नॉट यहाँ पे लगना नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ से पहले नन है, तो नन और नॉट दो बार आ गया। ये कैसे बच गया भाई? फर्स्ट है तुम्हारा ए, सेकंड है बी, नहीं सेकंड सी है ना, थर्ड है बी, ठीक है, फोर्थ है ई, फिफ्थ है डी। अब दो क्वेश्चन मैंने ऐसे मार्क किए हैं भाई जो गलत हो सकते हैं। एक तो बिट ऑफ एयर जो था वो मुझे समझ में नहीं आया, ये क्या है, ये वाला क्वेश्चन, और एक और कोई क्वेश्चन था। चलो ठीक है, देखते हैं। आओ भाइयों, इसको करें। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस थ्री हो गया एक्स, और वाई फाइव तो ये थ्री हो गया, प्लस माइनस थ्री, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। ठीक है, 3x स्क्वायर 7 4 3, तो 4 3 12, 12 7, और ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 5 40, 8 5 प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 8 या 24, 5 या 15, तो ये तो हमेशा बड़ा ही होगा, y ग्रेटर देन एक्स। इसमें क्या था यार, ठीक है y ग्रेटर देन एक्स ही होगा ना, प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 9 5 या 45, तो 15 3 माइनस माइनस प्लस माइनस, और ये वाई स्क्वायर 81, तो प्लस माइनस 9, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 माइनस 45, तो ये बड़ा होगा, कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। A and B started a business in the ratio 7:11 and their annual profit is 21:22 and invested the money for 9 months. Then how B कितने के लिए करेगा, तो 7 9 7 या 63, 11x 21/22 2 3x 6 आ जाएगा। Let's show the perimeter of rectangle, तो perimeter of rectangle हो गया तुम्हारा 2 × L + B, टू इस डायगोनल अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 14/5। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 24, तो ये हो जाएगा 576, और ये हो जाएगा 24, ये 2 से कटा 7, तो 24 प्लस बी अंडर रूट 576 प्लस बी स्क्वायर 7/5। ठीक है, अब क्या करना है, देन फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ बड़ा है ब्रेथ से, एरिया निकालना है तो फिर एल भी चाहिए होगा, बी निकाल सकते हैं यहाँ से, पर यार छोड़ो, भी लंबा कैलकुलेशन जाएगा इसका। स्टूडेंट को 25% मार्क्स, ठीक है 25% मार्क्स लाता है और फेल कर जाता है 80 मार्क्स से, तो ये हो जाएगा पासिंग मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स एंड द एग्ज़ाम इज 250 से 80 चला गया तो कितना बचा, 170 1/4 है, तो ये हो जाएगा 680 पासिंग मार्क्स पूरा। What is 60% of the maximum marks of the exam? 60% बोले तो 3/5, 5 1 3 6, तो 6 3 18, 13 39, 408। A train crosses a platform of 200 मीटर एंड अनदर प्लेटफॉर्म of 280 मीटर। ठीक है, तो ट्रेन 200 मीटर का कितना बार में क्रॉस कर रहा है, 16, और ये ट्रेन 280 मीटर का प्लेटफॉर्म कितने बार में, 20 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, तो 4 5 5t प्लस 1000 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 40 प्लस 28 चौका कितना हो जाएगा, 32 का 2 1 3 4 हो जाएगा 9 10 11 1 1 2 0 5t, और ये हो जाएगा 120।
अरे हो जा भाई। A boat travel 42 km upstream from point A to B and return to point A in 20 hours. If the speed of the boat is 5 km per hour, then find the speed of, ठीक है, तो 42 किलोमीटर पहले चलेगा अपस्ट्रीम v प्लस एस से, और इफ द स्पीड ऑफ द बोट दिया हुआ है 5 किलोमीटर, तो 5 प्लस एस प्लस 42, 5 माइनस एस, और ये टोटल कितना है 20 आवर्स में। तो ठीक है, अब देखो 42 यहाँ से काट दो, 5 प्लस एस और 5 माइनस एस, तो एस एस कट जाएगा, 5 प्लस 5 10, 5 का स्क्वायर 25 माइनस एस स्क्वायर 20, 10 2 2 21, 21 इज इक्वल टू 25 माइनस एस स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 एस स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा तुम्हारा 2 2, तो फाइंड, तो ये 2 आ गया। 47 माइनस 15, 15 इंटू 15 इंटू 123 बाई 40, 41, तो 4 1 या 4 3 या 15 या 45, 45 47 में से 2 गया, 45 गया 2, 5 6 6 का स्क्वायर 36 माइनस 18, तो 18 ही हो जाएगा, और फिर माइनस 343, 18 में से 7 गया 11, 88 11 11 8 8 हो गया, 8 5 8 5 13 13 19 और 13 हो गया, 19 10 29 और 3 32, 32 इंटू 32 इज इक्वल टू 18 चौके 4x x, तो 16 4 8 8 होगा ना, 8 चौके 32, हाँ ठीक है। 70 70 30 हो जाएगा तुम्हारा 21, 70 30 70 31 है ना, 70 31 7 2 1 70, ठीक है, प्लस 34 35 इंटू 2 70, तो ये 0 7 7 14 2 2 2 4 0, और ये हो जाएगा 14 44, 14 44 38 का होता है ना, तो 38 प्लस कर दो, तो 8 4 3 7 2 2 7 8, फिर 48 उन्ना 48 दूना 96 होता है ना, ठीक है, प्लस 528 529 यानी 23 6 3 9 9 2 11, और ये हो जाएगा 961 यानी 31 9 1 10 3 1 4 5 1 150, 40 40 इंटू 50 40 40 इंटू 85 है ना, तो 5 4 20, 2 0 लग गए, 2000 प्लस 18 9.09% 1/11 होता है ना, तो ये हो जाएगा 2/11 इंटू 500, तो इसको 10 ही मान लेते हैं, तो 50 तो 100 100 1900, 100 में से 48 चला गया, तो 1852, क्या हो गया भाई 2000 में, अच्छा ये जुड़ेगा ना, तो 50 गुना 100 2100, 2100 में से 48 हटाओ अब, तो 2052 2052, सबसे क्लोज तो यही है। 40 50 40 50 520 0 2000 हो गया, और 2/11 2/11 को 11 को 10 मान लिया, ठीक है, तो 0 से 0 50 गुना 100 100, अभी हो गया 100, तो 2121, चलो ठीक है यार, थोड़ा अजीब था। 24% बोले तो 4% का 6 गुना 6 इंटू 25 बाई 8 इंटू 100, 25 चौके 8 चौके 32 32 इंटू 6 2 या 12 6 या 18 19 192 में से 36 चला गया, 12 में से 6 गया 6, 18 में से 3 गया 15, 156 प्लस 47 48 8 6 14 9 10 204, काफ़ी टाइम लेके जा रहा हूँ मैं, तो 28 14 28 हो जाएगा तुम्हारा 4 इंटू 72 बाई 2 2 72 दूना 144 प्लस 77 78 8 4 12 7 4 11 12 2 2 2 55 55 56 प्लस 48 कितना 8 6 14 के 4 5 9 10 104 और 35 36 36 इंटू 4 36 इंटू 4 36 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 144 माइनस करना है, तो 4 माइनस 40, जल्दी करो भाई, 75 इंटू 4, तो 75 गुना 150 150 इंटू 2 300 300 माइनस 60 इंटू 3 180 180 चला गया, तो 120 बचा, 120 इंटू 2 तो 60 हो जाएगा,
80% तो 4/5 ऑफ 420 हो जाएगा तुम्हारा। तो 5 8 जा 40, 4 जा 20, 4 4 जा 16, 8 चौका 32, 33, 336 माइनस 900, 900 बोले तो 30, 30 माइनस कर दो तो 306 हो गया। 306 और फिर 931 का प्लस कर दो, 6 1 7 3 3 7, 82% तो 82 इंटू 5 हो जाएगा तुम्हारा 410 प्लस 1800, 1800 प्लस कर दिया इसमें 0 1 8 4 12, 2 2 2 1 0 2 1 0 2 2 1 0 और इसमें 80 माइनस कर दूँ तो अपना हो जाएगा 2170, नहीं 2130 ना, 70 10 80 हो जाएगा इसको जोड़ के। ठीक है, 90 301 तो ये हो जाएगा 3 0 और ये हो जाएगा 9 9 3 270 और 484 22, 2 7 2 9 292 और 36, 6 2 8 9 3 12, 328 13, 42% ऑफ 800, 42 इंटू 8, 42 इंटू 8, 8 दूना 16, 8 चौका 32, 336 माइनस 20%, 40 80, 80 6 33 में से 8 चला गया 25, 256, 256 बाई 4, 4 6 24, 64, 40% ऑफ 1500, 15 150 इंटू 4, 600 माइनस 20% 60, 540 माइनस 18 दूना 36, 6 4 3 7, 576। A person sold an article for 800 at a loss of 25%, CP 3/4, 800, तो find a price to gain a profit of 3/2, तो CP आ जाएगा तुम्हारा 800 इंटू 4/3, 3 3 गया 4 2 1600। रेशो ऑफ रेशो ऑफ BC, ठीक है, ABC इज 5:9 और BC हो जाएगा 2 1, तो ये 9, ये 2, तो ये 10 18 9। फाइंड द परसेंटेज ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू A, C 9 विथ रिस्पेक्ट टू A 190%। इन द फॉलोइंग 1 1 2 8 4 1 2 8 6, अच्छा ठीक है, 1 1 8 6 48, 2 चौके 8, 1 दूना 2, 2 चौके 8 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 6, तो ये गलत होगा फिर 386, 102 98, तो ये हो जाएगा -4, 89 -9 89 73 73, तो ये हो जाएगा 7 9 7 16, तो में से 1 का 2, तो ये गलत होगा 61 82 89, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 89 99 10, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 115 44, 5 में से 4 गया 1, 4 गया 1, 14 में से 1 रह गया 3, तो 7 3 10 10 6 16, तो यहाँ 9 होना चाहिए था, तो ये गलत होगा 144। अगर यहाँ पे 9 होता तो 16 9 25, चलो यार गलत हो सकता है। 187 76, अब जल्दी करना पड़ेगा, 187 76 जो 11 हो गया, ये 11 176, 17 में से 15 गया 2, 6 में से 3 गया 11 23, 53 15 में से 12 गया 3, 3 में से 1 गया 2, ठीक है, 1 के 12 में से 7 गया 5, 12 में से 7 गया 5, 11 में से 7 गया 4, 4 11 में से 7 गया 4, 11 में से 7 गया 4, 44 11, तो ये 22,
ये गलत होता, 22 33 होता, 1 2 3 153, 65 90 70 80 90 25 90 139 49, 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 139, तो 11 में से 9 गया, 11 में से 9 गया 2, 21 में से 13 चला गया 7 8, और ये 34 में से 22 चला गया तो 12, तो 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो इधर भी स्क्वायर ही होना चाहिए था, तो ये गलत होना चाहिए 221। यहाँ भी मैं थोड़ा गलत हो सकता हूँ भाइयों, ठीक है। अब ये करते हैं फॉलोइंग पार्ट्स शो द नंबर ऑफ लिस्टेड वोटर्स फ्रॉम सिटीज़, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, आसान है। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स फ्रॉम गुरुग्राम लखनऊ जयपुर। गुरुग्राम है तुम्हारा ये ग्रे वाला 20%, लखनऊ 28, और जयपुर कौन सा है, ग्रीन 20%, तो 20 20 40 40 60 68%, 68 इंटू 8 कर लो, 8 8 जो 64, 4 6 8 6 48 और 6 54 544, ये होगा। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ वोटर्स फ्रॉम नोएडा। नोएडा की बात कर रहा है, नोएडा है 15%, टू द विद रिस्पेक्ट टू द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स फ्रॉम चंडीगढ़। चंडीगढ़ ब्लू वाला 5% ये रहा, तो 300%। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वोटर्स फ्रॉम बेंगलुरु एंड नोएडा टुगेदर। बेंगलुरु एंड नोएडा टुगेदर, बेंगलुरु कहाँ है, ये रहा बेंगलुरु 12 एंड नोएडा टुगेदर, नोएडा ये 12 15 12 5 2 7 27 हो जाएगा ना, तो 27% टू द नंबर ऑफ वोटर्स फ्रॉम लखनऊ एंड जयपुर टुगेदर। लखनऊ 28 एंड जयपुर 20 48, तो 48 8 में से 7 गया, 1 4 में से 2 21% निकालना है। 21% ऑफ 8 8 1 जा 8 8 2 जा 16 1 6 8, ये हो गया। If 20% and 25% of the voters from Gurugram and Jaipur respectively are female voters, then find the total male voters, ठीक है। फीमेल वोटर्स दिया हुआ है किसका, इसका गुरुग्राम और जयपुर का। गुरुग्राम में 20%, गुरुग्राम में 20%, और जयपुर का कितना है, जयपुर 20%, ये भी 20% है, दोनों 20% है। गुरुग्राम, ये रहा गुरुग्राम और ये रहा जयपुर, ठीक है। अब इसके 20% वो हैं फीमेल हैं, तो 4/5% इसके मेल हो जाएंगे, और इसके 25% वो हैं, तो 3/4 मेल हो जाएंगे, तो 4/5 5 4 16%, और इसका 4 5 5 या 15 16 15 31 निकालना, 31% ऑफ 80, इतना 8 1 जा 8 8 3 जा 24 248 से शुरू होने वाला नंबर ये। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स फ्रॉम उदयपुर इज सम ऑफ, उदयपुर का बता रहा है ना, उदयपुर इसमें नहीं होगा, ठीक है। इस सम ऑफ 25% ऑफ वोटर्स फ्रॉम गुरुग्राम। गुरुग्राम में कितने थे, गुरुग्राम ये रहा ना, गुरुग्राम ये रहा 20%, 20% का 1/4 20 5%, और 40% ऑफ वोटर्स फ्रॉम नोएडा। नोएडा 15% का 40%, 2/5, तो ये 6%, एंड 40% ऑफ वोटर्स एंड 55% ऑफ वोटर्स फ्रॉम चंडीगढ़। चंडीगढ़ ब्लू 5%, और इसका 55% बोले तो 11/20 25 4 जा, तो 11/4%, तो 6 5 11 11 + 11/4 44, 11 55/4% निकालना है। 400 ऑफ 8, ठीक है, 4 200 5 2 जा 10 और 10 1 1 000, ये होना चाहिए। हो गया, ये बचा है ना यार, ये वाला इक्वेशन मैंने कहीं बनाया था, ये रहा। If the length of the rectangle is 25 centimeter, if the length of the rectangle is 24 centimeter, find the area of the rectangle। एरिया होता है L × B। तो यार फिर तो यही है कि इसको स्क्वायर कर दें, इसको स्क्वायर करेंगे तो फिर इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा, काफ़ी लंबा कैलकुलेशन जाएगा इसका। क्या और कोई तरीका, लेंथ ग्रेटर देन ब्रेथ दे रखा है,
इससे कुछ कर सकते हैं। हम्म, देखो लेंथ है 24, तो 24 का मल्टीपल ही आना चाहिए। लेंथ बड़ा है ब्रेथ 24, 6, तो 6 से तो ये है, 6 से 6 7 42, 4 से ये नहीं है, 6 6 4 जा 24, 6 से ये नहीं है, 6 तो ये होना चाहिए फिर 6 7 42 तो ना, और 4 से भी है ना, 4 से भी है। तो देखो भाई मैंने इसे ऑप्शन एलिमिनेशन से कर लिया, क्योंकि देखो यहाँ पे L/B तब होता जब लेंथ और ब्रेथ दोनों एक दूसरे के इक्वल होते। तो यहाँ पे हम लोग 24 × 24 कर सकते थे, पर यहाँ पे दे रखा लेंथ ब्रेथ के, लेंथ बड़ा है ब्रेथ से। तो फिर मैंने ये देखा कि लेंथ अगर 24 है तो 6 और 4 का मल्टीपल होगा एरिया, तो 6 और 4 का मल्टीपल बस मुझे ये दो नंबर दिख रहा था अगर मैंने अच्छे से चेक किया है तो ये नहीं हो सकता, तो यही होगा। चलो भाई और तो कुछ ऐसा है नहीं, बस कुछ गलत ना हुआ इसमें। थोड़ा पानी पी लेते हैं। ये वाला सेक्शन बस अच्छे से हो जाए भाई। इफ मैंने अभी नहीं 7% ADH के minority and 2% is between H and K, 2% is between H and K, ठीक है। O is third to the right of H, O is third to the right of H, तो ये तो गया to the right of H। R set adjacent to K, R set 3 4 5 6 7 तो हो गया। R set adjacent to K, R set adjacent to K, और M set immediate left of A, और क्या है ADHKMOR, तो ये हो जाएगा D। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सेट्स अंडर KO है ना। What is the position of D with respect to K? Second to the right. How many persons sit between R and A? R A 1 2 3। If all the person alphabetical left to right, ठीक है। तो ADHKMOR, KMOR, तो एक ही होगा बस। D sits adjacent to RH, ठीक है। इफ द नंबर्स आर रिप्लेस्ड विद द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट, ठीक है। तो 4 दूना 8, 7 या 21, 2 8 या 24, 49, लार्जेस्ट पूछा है ना, तो 7 1 7। इफ द स्मॉलेस्ट डिजिट ऑफ विच नंबर इज रिमूव्ड, ठीक है, स्मॉलेस्ट को रिमूव करना है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर वुड बी द थर्ड स्मॉलेस्ट। 46, 47, 24, 84, 77, 1 2 3 4 6। द स्मॉलेस्ट इच नंबर इज रिमूव्ड, तो 46 हो गया, 47 हो गया, 24 हो गया, 84 हो गया, 77 हो गया। थर्ड स्मॉलेस्ट 1 नहीं 1 2 3 47 होता ना यार, 3 4 7, अभी तो मैं गलत करने वाला था। 1 2 3, अब ठीक है। In how many numbers of the number would be unchanged if the digits of each number are arranged in ascending order, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में तो ये तो चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, नहीं ये नहीं चेंज होगा ना, 3 4 7 एक हो गया, ये चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, तो एक ही रहा। If the even number digits are decreased by 1, then which of the following number would be the largest? तो इवन डिजिट को 1 से सब्ट्रैक्ट करो, 3 5 1, 3 2 3 3 7, और 2 1 3 1 7
3 3 7 1 7। द लार्जेस्ट तो ये होगा 717। इन हाउ मेनी ऑफ द नंबर्स इज द सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट लेस देन 5? 4 2 6 नहीं, 7 3 10 नहीं, 2 1 3 ये हो सकता है, 8 3 11 नहीं, 7 7 तो एक ही होगा। हाउ मेनी फीमेल, अच्छा ए फैमिली हैड 7 मेंबर्स ए बी सी, बी इज ब्रदर वाज मैरिड टू सी। बी का ब्रदर is married to C. D was the brother-in-law of C. B's brother was married to C. B का भाई, B's brother was married to C. G was D's son. G जो है वो D का बेटा है। D was the brother-in-law of C's only sibling. C के only sibling का D brother-in-law है। E was married, unmarried, और ये unmarried है, ठीक है। E was married to A. B was the son of E. B was the son of E. E married to A था। E was not the father of B, but E was not the father of B, तो मदर हो जाएगा A। D का बेटा G, तो बच क्या हो गया? A B C D E F G, F बच गया ना। B's brother was married to G. D was brother-in-law of C. तो सन, अच्छा B सन था, B was the son of A, ठीक है। तो बन गया। हाउ मेनी मेल मेंबर्स, इसका जेंडर नहीं क्लियर है तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। जी तो सन था ना। हाउ वाज ए रिलेटेड टू सी, ए क्या है सी का? ए ससुर, फादर इन लॉ। हाउ इज बी रिलेटेड टू जी, बी क्या है? अंकल। ऑल द इवेंट डिजिट्स अभी नहीं करेंगे, क्या कर लेते? ऑल द इवेंट डिजिट्स आर हाफ्ड एंड ऑड डिजिट्स आर रिप्लेस बाई हाफ ऑफ इट्स प्रीवियस नंबर। तो 6 का हो जाएगा 3, 2 का हो जाएगा 1, 7 6 3 5 4 2 8 4 6 3 2 1 8 4। इसको क्या करना? डिनोट विद द सम ऑफ द फोर्थ डिजिट फ्रॉम बोथ एंड। फोर्थ 4 2 6। 8 person PQRST are sitting around a square table. Corner of the table with 4 person on the middle side and all person are facing inside, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। और क्या है? R से second to the right of V, R से second to the right of V, W से third to the left of R, W से third to the left of R, V sits at the corner of the table। तो बना लेते हैं। V sits at the corner of table, R यहाँ आ जाएगा, R 1 2 W यहाँ आ जाएगा। 3 person sits between W and S, तो W और S यहाँ पे आ जाएगा। P sits third to the right of S, P यहाँ पे आ जाएगा। T sits immediate left of Q, तो एक ही जगह है, Q के immediate left में T। बच क्या गया? P Q R S T U V W, तो U बच गया ना, ये होगा। U sits second to the right of P, नहीं, immediate left of R, हाँ। 4 of the S W U Q T, S W U Q T, T है जो कॉर्नर पे है। If all the person sits according to alphabetical from P in clockwise direction after except P, ठीक है, P को छोड़ के, तो Q होगा P Q R S T U V W, तो more than 3। How many persons sits between W and T when counted from left of W? 1 2। If T is related to V, तो P is related to R हो जाएगा।
ठीक है, एवरी नाइट इन ड्रीम्स छोटा है तो इसको बिना प्लॉट किए करते हैं। व्हाट इज़ द कोड फॉर फोकस? तो फोकस ये रहा, फोकस और कहीं फोकस है नहीं, तो 5 स्टार 5 यहाँ पे नहीं होगा, 2 स्टार 2, 2 स्टार 2, 2 2 2 2 2 2 स्टार 2 ही होना चाहिए। फिर 6 है, 6 है, 2 स्टार 2 है तो 6 है, 6 ही होना चाहिए। 2 मॉड्यूलर 2 है, 3 3 एक्सक्लेमेशन 3 ये भी है तो यही होना चाहिए। फिर अब इसका कोड बताना है, 2 मॉड्यूलर 2, 2 मॉड्यूलर 2 तो ये दो जगह पे है, फोकस ऑन योर ड्रीम्स ट्रू फ्रेंड्स, तो ऑन हो जाएगा इसका। 8 + 8, 8 + 8 बस यहाँ नहीं, ये दोनों जगह है। योर एवरी ट्रू विश, ट्रू 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 हो गया, ऑन ट्रू, ऑन ट्रू, ऑन ट्रू, और 5 स्टार 5, 5 स्टार 5, 5 स्टार 5 यहाँ पे ड्रीम्स, ऑन ट्रू ड्रीम्स ही हो गया। इफ़ विश इज रिलेटेड टू $7, ठीक है, तो ये विश का कोड ही है ना। नाइट, तो नाइट क्या हो जाएगा, नाइट, नाइट कहीं है, कहीं नहीं है, तो 1 रेट, ये तो नहीं होगा, 4, तो ये हो सकता है 4 and 4, क्योंकि 4 and 4 और कहीं नहीं है। ठीक है, 5 स्टार 5 ये नहीं हो सकता, 9 ये भी हो सकता है। यार ये दोनों साइन तो अलग है ना, चलो ठीक है यही मार्क करते हैं, ऑप्शन ही नहीं है 9 का तो। ठीक है, अब 7 बॉक्सेस, 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है, तो मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब ठीक है, बॉक्स टी इज केप्ट अबव बॉक्स जी, above box G. Only 2 boxes are kept below box B. 3 boxes are kept between E and A. 3 boxes are kept between E and A. Box B is kept immediately above box E, और E और A के बीच में 3 है, 1 2 3 A. Box F is kept immediately below box C. C के immediately below F, और ये हो गया G, ये हो गया D. टॉप मोस्ट पोजिशन पे D होगा। एज मेनी बॉक्स आर केप्ट बिटवीन G and F. G and F के बीच में 2 है, एज बिटवीन A and B. 4 ऑफ द फॉलोइंग F G D C, तो ये हो गया F G D C B G A F, तो फिर यही होना चाहिए, G F ही होना चाहिए, इसमें 2 का गैप। बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली E F, बॉक्स इमीडिएटली बिलो F तो नहीं है, तो अबव E. बॉक्स E इज केप्ट इमीडिएटली अबव G होना चाहिए। ऑल अल्फा आर बीटा, सम बीटा आर गामा, only a few gamma is delta. Some alpha is gamma, some alpha is gamma, नहीं, no alpha, either or. 100% stick, arcane, only a few cane is pole, all pole is road. Some cane is not road, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। नो स्टिक इज पोल, ये भी नहीं बोल सकते हैं, तो नीदर। सम पल्स इज बीट, ओनली अ फ्यू बीट इज रिदम, सम रिदम इज थ्रो, नो बीट इज रिदम, ये गलत बात है। सम पल्स बीइंग थ्रो, द पॉसिबिलिटी ओनली 2, ठीक है, इसको करते हैं। 6% आ रहा है, ध्रुव जूनियर डिफरेंट कैप्टन सीनियर मास्टर, कैप्टन और ट्रेनी जूनियर मास्टर, तो कैप्टन के बाद कौन आएगा, चीफ
ऑफिसर, फिर क्या है, डेक कैडेट, बोसन, सीमैन, ऑर्डिनरी सीमैन है, ट्रेनी। 6 हो गए, 3 4 5, 3 4 5 6। चलो भाई, द नंबर ऑफ सीनियर टू जीमा, गीमा के सीनियर जितने हैं उतना ही नीरा के नीचे हैं। गिमा है सीनियर टू नीरा, गिमा नीरा से सीनियर है, ठीक है। गिमा इज़ नॉट द सीनियर मोस्ट, गिमा यहाँ नहीं आएगी, छिमा तो फिर यहाँ हो सकता है, और यहाँ हो सकता है, और क्या है, ओनली 2% बिटवीन नीरा एंड आर्या, तो नीरा 1 2 आर्या नीरा, तो ये तो कैसे गया, नीरा 2 आर्या नीरा 1 2 आर्या, ये हो गया। ओनली 2, जेनी इज डेजिग्नेटेड इमेजिनरी जूनियर टू ध्रुव, तो ध्रुव के सीधा नीचे जेनी, और बच कौन गया, बच गया तुम्हारा जेनी, लिसा बच गई ना। द डेजिग्नेशन ऑफ लिसा इज चीफ ऑफिसर, हम द फॉलोइंग जूनियर मोस्ट ट्रेनी जेनी, ठीक है। हाउ मेनी पर्सन आर सीनियर टू आर्या, नन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज आर फॉल्स, कैप्टन ध्रुव, हाँ ठीक है। डेक कैडेट लिसा, ठीक है। बॉसन नीरा, तो 1 and 2 होगा। डेक कैडेट लिसा नहीं थी ना, नहीं। नीरा इज डेजिग्नेटेड इमीडिएट सीनियर टू ध्रुव, हु इज ऑर्डिनरी सीमैन, सीनियर टू ध्रुव। अब ये बचा, इफ अ मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फाउंड यूजिंग द फर्स्ट 4 6 लेटर ऑफ द वर्ड, फर्स्ट हो गया ये, 3 ई हो गया ये, फोर्थ हो गया, फिफ्थ सिक्स, तो इससे एक तो ईट बनेगा, एक तो 8 बनेगा, तो यार ईट और 8 तो एक ही वर्ड का अलग अलग फॉर्म है ना, तो इसको 2 काउंट कर सकते हैं। क्या है, एंड देन व्हाट इज द थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द वर्ड फॉर्म, तो ई हो सकता है या फिर ए हो सकता है। इफ नो सो देन मार्क वाई, इफ मोर देन 1 तो जेड, तो ई और ए। भाई ईट और एट को अलग अलग वर्ड मानना है क्या, ईट और एट, ईट है और एट है, और कुछ बना सकते हैं, टी ए ई टी, ई टी ए, अच्छा टी भी तो हो सकता है, तो 2 वर्ड तो बनी है, तो फिर मोर देन 1 देन मार्क जेड, तो जेड हो जाएगा इसका आंसर। आओ भाई, देखते हैं कितना मार्क्स बने हैं। पहले इसको ऑफ करो। हाँ, 95 मार्क्स आए हैं भैया। इंग्लिश में 2 गलत हुए हैं, क्वांट्स में 1 गलत, एलआर में भी 1 गलत हो गया। खैर एलआर में मुझे ऐसा कुछ सच मैंने कुछ गलत नहीं किया था। चलो ठीक है, आप अपने स्कोर बताना।